Hello my dear students, this is Swati Chawla. I welcome you all on my YouTube channel and the series of class 11th and 12th Computer Science with Python. As you know, I have started the revision series of last year questions. In our previous video also, we have discussed some questions of last year from the chapter functions. In this video also, we are going to discuss some most important questions, वो भी आपके लास्ट ईयर के जितने आपके एग्जाम में आए हुए हैं. I have tried to compile all these question answers. Plus, except these two videos, some more videos are there in the playlist of functions. After this video, I will try to compile all these previous year questions of this chapter. उनको मैं सबको numbering provide कर दूंगी, so that it will be easy for you to find and watch those videos. So let's start today's video. But before starting that, if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. And if you like this video and want more videos of these type, do press the like button and share your views in the comment section. So let's start now. So this is our first question. Find and write the output of the following code. आपको ये कोड गिवन है, you have to find the output of this. Now see this is the function definition part beginning from here. 3 parameters are there and return value दे रखी है बेटा a plus 5, b plus 4 and c plus 7. अब यहाँ पर मेरे पास 3 वेरिएबल्स है बेटा s1, s2 and s3. सम फंक्शन कॉल किया, values I am passing 2, 3 and 4. That means first value will be passed to first argument, second value will be passed to second argument and third value will be passed to third argument. So a में 2, b में 3 and c में 4. a plus 5, value of a is 2, 2 plus 5, 7, b plus 4, 3, 3 plus 4, again 7, c plus 7, c is 4, 4 plus 7, 11. अब my function in Python can return more than one values at a same time. So ये कितनी वैल्यूज रिटर्न कर रहा है बेटा 3. ये 3 वैल्यूज इसी सीक्वेंस में किस में आ जाएंगी s1, s2, s3 और मुझे प्रिंट कराना है बेटा s1, s2, s3. इनकी वैल्यूज क्या प्रिंट हो जाएंगी 7, 7 एंड 11. ठीक है. अब यहाँ पर कोमा दे रखा है बीच में, तो दैट मीन्स आपका जब इसको प्रिंट कराओगे तो आंसर में क्या आएगा बेटा स्पेस. इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन कर देते हैं. Let me just execute this. Yes, तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा 7, 7 और 11. ठीक है. Now let's suppose in case अगर क्वेश्चन में यहाँ पर एक ही वेरिएबल होता s1 और मैं यहाँ पर किसको प्रिंट करा रही हूँ सिर्फ s1 को, तो आपका आंसर क्या आएगा और किस फॉर्म में आएगा. अगर मेरा फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो किसकी फॉर्म में रिटर्न करता है बेटा टपल की फॉर्म में. अब 3 वैल्यूज हैं 7, 7 और 11, तो आपका आंसर बेटा इस फॉर्म में आएगा. नाउ सी द डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ टपल एंड दिस वन. जब हमने टपल को अनपैक कर दिया वापस से, दैट कंसेप्ट वाज नोन एज टपल पैकिंग एंड अनपैकिंग. सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा बेटा 7, 7 एंड 11. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Python has certain functions that you can readily use without having to write any special code. What type of functions are these? Give 2 examples of that. एक तो बेटा we are having user defined functions. User defined functions कौन से होते हैं बेटा which are defined by the user, like addition, interest, any function defined by the user. एक होते हैं functions defined in modules, means जो functions आपके modules में define है. Example sqrt, pow, factorial, random function, वो आपके modules में defined है. एक हमारे पास होते हैं बेटा simple built-in functions. ठीक है. Built-in functions are those functions which you can directly use in your program without importing any module. So अब इसमें क्वेश्चन में भी यही है without having to write any special code. अब सपोज मुझे int function import करना है,
सॉरी int फंक्शन कॉल करना है, print फंक्शन कॉल करना है, we can directly call these functions. For to calling these functions, there is no need to import any such module. So the correct answer is int and print. Or you can write any function here जिसमें हम किसी मॉड्यूल को import ना कर रहे हो. Now next third question बेटा, write the statement to call the function. अभी आपको function given है, you have to write the statement to call the function. अब देखो आपने किस तरीके से लिखना है. सबसे पहले फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम क्या है बेटा, लेट मी जस्ट राइट इट हियर, ऐड कैपिटल ए स्मॉल डी. अब उसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, यूजर से वैल्यू नहीं ले रखी है तो हम कोई वेरिएबल यहाँ पर नहीं लिख सकते. सो इट्स बेटर टू राइट एनी 2 वैल्यू हियर. ठीक है, लेट मी सपोज जस्ट राइट 1, 2 वैल्यूज हो गई. अब ये फंक्शन यहाँ पर एडिशन हो गया, एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है. ठीक है, वो किस वेरिएबल से रिटर्न कर रहा है, z में. और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, टोटल इक्वल्स टू c, मीन्स जो वो वैल्यू रिटर्न होकर आएगी उसको ये प्रिंट करा रहा है. तो दैट मीन्स मुझे उसको किस वेरिएबल में स्टोर कराना है बेटा, c में. सो द करेक्ट आंसर इज c. यहाँ पर आपने c ही लिखना है क्योंकि यहाँ पर अब मेंशन कर दिया क्वेश्चन में ही कि मैं वैल्यू किसके प्रिंट करा रही हूँ बेटा, c की. एड जो फंक्शन का नेम है, हियर यू कैन पास एनी 2 आर्ग्यूमेंट्स. ओके, इवन यू कैन पास फ्लोट वैल्यूज ऑल्सो क्योंकि सिंपल एडिशन हो रहा है, डेटा टाइप आपकी कहीं पर भी डिफाइन नहीं है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच लाइन नंबर कोड विल नेवर एग्जीक्यूट एंड व्हाई. ये आपको कंप्लीट कोड गिवन है एंड यू हैव टू टेल कि कौन सी लाइन आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी. लाइन, अब देखो पहले फंक्शन डेफिनेशन पार्ट है, फंक्शन कॉल हो रहा है तो दैट मीन्स फंक्शन डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगा. इफ कंडीशन है, उसके बाद प्रिंट फंक्शन. अब देखो फंक्शन में जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट आ गई, इफ के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट आ गई, अब इसी टाइम पर मेरा कंट्रोल यहाँ से वापस आ जाएगा. तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट विल नेवर गेट एग्जीक्यूट. अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा, विच लाइन नंबर. तो विच लाइन इज दिस, लाइन नंबर 5. सो करेक्ट आंसर इज लाइन 5. आपको लाइन 5 ही लिखना है यहाँ पर. लाइन नंबर 5 विल नेवर एग्जीक्यूट, reason being that it is after the return statement. Whenever the return statement is encountered in the program, कंट्रोल कहाँ पर आ जाएगा, उसका फंक्शन से बाहर ट्रांसफर हो जाएगा. उसके बाद की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके मोस्टली एग्जाम में आते हैं बेटा, फंक्शन डिफाइन करने वाले. नाउ सी दिस, राइट द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन. और फंक्शन का नेम क्या गिवन है बेटा, 10 टाइम्स even. Let me just define it here. Define function definition. Let me just change its. I hope now this is clearly visible to you. Okay. अब लिस्ट का नेम क्या गिवन है बेटा, वैल्यूज. अगर वो आपको नेम गिवन है बेटा, फंक्शन नेम, वेरिएबल नेम, फंक्शन लिस्ट नेम, सो यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट यू विद टू यूज दोज नेम्स ओनली, अदरवाइज योर मार्क्स विल गेट डिडक्टेड. अब उसके बाद क्या है, टू ऐड करना है, डिस्प्ले भी करना है. क्या डिस्प्ले करना है बेटा, सम ऑफ 10 टाइम्स ऑफ इवन वैल्यूज. अब इसी क्वेश्चन में सब कुछ आ गया बेटा, आपको सम भी करना है, 10 टाइम्स भी करना है. 10 टाइम्स मीन्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है 10 से, ऑफ इवन वैल्यूज के लिए. दैट मीन्स पहले मैं अपने लिस्ट में से इवन वैल्यूज निकाल लूंगी कंडीशन लगाकर, फिर जो इवन वैल्यूज आएंगे उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और फिर उस वैल्यूज को मैं ऐड कर दूंगी. ठीक है, ये चीज करनी है. प्रेजेंट इन द लिस्ट ऑफ वैल्यूज. अब एक यूजर से लिस्ट ले लेते हैं और यू कैन टेक दिस लिस्ट ऑल्सो इफ द नम्स कंटेन दिस. ठीक है, ये आपकी चॉइस है. लेट्स सपोज मैंने नम्स नेम से ये लिस्ट ले ली बेटा. ठीक है, और वी कैन लेट्स गेट इट एंटर्ड विद द हेल्प ऑफ यूजर. एंटर लिस्ट ऑफ इंटीजर्स. आफ्टर दैट वी हैव टू कॉल द फंक्शन. फंक्शन नेम इज 10 टाइम्स इवन. और यहां से किसकी वैल्यू पास करेंगे बेटा, नम्स, जो मेरी क्या है, लिस्ट. अब जब मेरी जो लिस्ट यूजर एंटर करेगा वो किस में आ गई बेटा, नम्स में. दैट मीन्स वो वैल्यूज में पास हो जाएगी. अब मुझे जो मेरी लिस्ट है उसको 1 by 1 ट्रेवर्स करना है फॉर आई इन वैल्यूज.
अब here you can even use range function also, और रेंज फंक्शन कैसे करोगे, फॉर आई इन, यहाँ पर रेंज लिख देंगे और वो लेंथ ऑफ वैल्यूज तक मेरा लूप चलेगा, और यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज फॉर आई इन वैल्यूज। अब अगर आपके माइंड में डाउट है कि रेंज फंक्शन कब यूज करना और सिंपल लिस्ट कब यूज कर सकते हैं, बट इन सम केसेस तो यू कैन यूज एनी, बट जहां पर इंडेक्स की बात होगी, मुझे किसी वैल्यू का इंडेक्स चाहिए होगा, किसी एलिमेंट का 0 1 2 3, वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, रेंज फंक्शन। अब यहाँ पर तो इन्होंने बोल दिया इवन वैल्यूज, वो आपकी आई में आ जाएंगी, बट अगर वो बोलता है इवन पोजीशन की वैल्यूज, दैट मीन्स इंडेक्स की बात हो रही है, तो जहां पर भी इंडेक्स यूज होगा वहां पर आपको रेंज फंक्शन यूज करना है, अदरवाइज वो आपकी चॉइस है बेटा, ठीक है। फॉर आई इन वैल्यूज, अब आई में मेरे पास क्या आ जाएंगी, सपोज लेट्स सपोज यूजर ने ये वैल्यूज एंटर करी बेटा, तो आई में मेरे पास क्या आ रहा है 5 2 3 मीन्स वैल्यूज। अब मुझे चेक करना है कि वो इवन वैल्यूज हैं या नहीं, फॉर आई मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0। अभी क्वेश्चन नहीं कंप्लीट करेंगे, हाफ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। अब यहाँ पर हमने लिस्ट एंटर कराई बेटा, अब देखो यहाँ पर इट इज शोइंग द इवन नंबर्स, दैट मीन्स हाफ पार्ट इज करेक्ट। अब मुझे क्या करना है, 10 टाइम्स ऑफ इवन नंबर, 10 टाइम्स के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, i इंटू 10। लेट्स सपोज वी आर एंटरिंग दिस लिस्ट अगेन, अब मेरे पास देखो इवन वैल्यूज का 10 टाइम्स हो गया। नाउ आई हैव टू ऐड दीज वैल्यूज, ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था बेटा, वी हैव टू ऐड एंड डिस्प्ले द सम ऑफ 10 टाइम्स ऑफ इवन वैल्यूज। इवन वैल्यूज हो गई, 10 टाइम्स भी कर दिया, अब मुझे उसका क्या करना है बेटा, सम। एंड व्हेनेवर वी हैव टू डू द सम, यू हैव टू टेक अ वेरिएबल, इनिशियलाइज इट विद 0, और उसके बाद आपका जहां पर कंडीशन ट्रू हो रही है वहां पर हम उसको ऐड कर देंगे, सम प्लस इक्वल्स टू आई इंटू 10। दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू सम इक्वल्स टू सम प्लस आई इंटू 10। 10 टाइम्स हो गया, इवन वैल्यू से कंडीशन आ गई आई में, और हमने उसको क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया। नाउ वी हैव टू डिस्प्ले द रिजल्ट, तो प्रिंट सम ऑफ 10 टाइम्स ऑफ इवन वैल्यूज, ठीक है। अब इसको डिस्प्ले करा देते हैं, किसकी वैल्यू डिस्प्ले करानी है बेटा, सम। अगर इस प्रिंट स्टेटमेंट को विल राइट इनसाइड द फॉर लूप, देन इट विल शो द इंटरमीडिएट वैल्यूज आल्सो। लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट दिस वन। हमने लिस्ट एंटर कराई, अब देखो सम ऑफ 10 टाइम्स ऑफ इवन नंबर, ये नहीं है 0, फिर 20, उसके बाद कंडीशन 6 वाली है बेटा, 60, 60 प्लस 20 80, 80 के बाद 80 प्लस 4 120, तो इसीलिए हम इसको कहां पर डिस्प्ले कराएंगे बेटा, आउटसाइड द फॉर लूप, ठीक है। नाउ यू कैन इवन चेक द आंसर ऑल्सो। इवन वैल्यूज कौन सी है बेटा, 2, इसका 10 टाइम्स क्या हो जाएगा 20, 6 का 10 टाइम्स 60 एंड 4 का 10 टाइम्स 40। इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो 40 प्लस 60 100 प्लस 20 विल बी 120। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। और अगर एग्जाम में जैसे इस फॉर्म में क्वेश्चन आया हुआ है तो देयर इज नो नीड टू राइट दीज टू स्टेटमेंट्स। ये तो हमने एग्जीक्यूट किया तो आपने डिस्प्ले करा दिया, ठीक है, हमने कॉल करना था उसको, बट इन एग्जाम यू कैन इवन राइट दिस पोर्शन ऑल्सो, ओनली फंक्शन डेफिनेशन पार्ट। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन में चेंज होता है, यू हैव टू फाइंड रिटर्न द सम, मीन्स डिस्प्ले कराने की बजाय क्या कराते हैं हम, रिटर्न। तो हम यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं बेटा रिटर्न एंड देन सम, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन कि आपको किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है, सो यू हैव टू अटेम्प्ट इट अकॉर्डिंगली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन is the return statement optional in a program? What is the difference between return well and return? इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा? सिंपल अगर हम रिटर्न लिख दें और रिटर्न वेल, इससे पहले फर्स्ट पार्ट इज द रिटर्न स्टेटमेंट इज ऑप्शनल। यस, द रिटर्न स्टेटमेंट इज ऑप्शनल because if my function is of void type means it does not return any value, so वहां पर आपके return statement क्या है बेटा, optional है। And difference between return well and return well, that means it will return the particular value जो उसने calculate की होगी, value जो आपकी val variable में है, it will return that value। और जो return हम simple लिख देंगे, it will return none। Let me show you this practically also।
इसी की बात करते हैं। लेट सपोज यहाँ पर मैंने लिखा रिटर्न, अब ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, अब मैं उसको प्रिंट करा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने रिटर्न के आगे कुछ नहीं लिखा। लेट मी जस्ट चेक दिस लिस्ट। अब क्या रिटर्न कराया बेटा उसने? नन। दैट मीन्स ये मेरा void फंक्शन, इट इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर सम लिख देती तो रिटर्न वेल, वेल में क्या वैल्यू आती बेटा? सम। तो ये किसकी वैल्यू रिटर्न करा देता? सम की। अगर मैं यहाँ कोई वैल्यू नहीं लिख रही, कोई वेरिएबल नहीं लिख रही, तो देन इट विल रिटर्न नन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, rewrite the following code after removing the errors, underline each correction done by you। एरर फाइंडिंग क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं, 2 मार्क्स के आते हैं बेटा, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करो यहाँ से। सबसे पहला क्या बेटा? डेफ कीवर्ड सॉरी, फंक्शन डेफिनेशन बिगनिंग है यहाँ से, तो डेफ इसका ये क्या आएगा बेटा? स्मॉल डी ई और एफ। उसके बाद टीओटी मेथड टू फाइंड द टोटल, नंबर एक आर्ग्यूमेंट है बेटा, सम इक्वल्स टू 0, 4c इन रेंज, 4 का f क्या आएगा बेटा? स्मॉल। c इन रेंज, यहाँ पर c बेटा स्मॉल है, यहाँ कैपिटल है, ये भी एरर है बेटा। तो आइदर यू कैन मेक इट स्मॉल और मेक दिस कैपिटल, ठीक है, बट वो आपका सेम होना चाहिए। आई एम जस्ट करेक्टिंग इट हियर ऑल्सो। फॉर c इन रेंज, रेंज का r क्या आएगा बेटा? स्मॉल, 1 कोमा नंबर प्लस 1, और फॉर लूप के बाद क्या आता है बेटा? कॉलन। सम प्लस इक्वल्स टू c, यहाँ पर हमने कैपिटल कर दिया है। उसके बाद है रिटर्न सम, रिटर्न कर रहा है ये, और रिटर्न का r कैसा आएगा बेटा? स्मॉल। नेक्स्ट प्रिंट फंक्शन गिवन है 2, tot फंक्शन कॉल स्टेटमेंट 3 और 6। अब यहाँ लिखा हुआ है एज अ कमेंट कि दीज आर योर फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। फंक्शन कॉल स्टेटमेंट के लिए हम ये वाले ब्रैकेट्स यूज करते हैं। जो ये वाली ब्रैकेट है या तो ये लिस्ट के साथ यूज होंगी या फिर विद इंडेक्स इन अ स्ट्रिंग टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। यहाँ पर स्ट्रिंग का तो कुछ है नहीं, इंटीजर्स है, सो आपकी यहाँ पर ब्रैकेट्स कौन सी आएंगी बेटा? दिस वन, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट वाली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, आपको इसका आउटपुट फाइंड आउट करना है। इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, सी की वैल्यू भी आ जाएगी। नाउ सी हियर, डेफ माई फंक्शन a b equals to 5, c equals to 10, और a is, b is और c is इनकी वैल्यूज प्रिंट करा रखी है, ठीक है। अब देखो कैसे प्रिंट होंगी। माई फंक्शन कॉल किया 3 और 7, दीज आर माई डिफॉल्ट वैल्यूज, एंड डिफॉल्ट वैल्यूज तब यूज होंगी बेटा अगर मैं फंक्शन कॉल कर रही हूँ एंड आई एम नॉट पासिंग द वैल्यू, तो देन इट विल कंसीडर द डिफॉल्ट वैल्यू, अदरवाइज इट विल टेक दैट वैल्यू ओनली। So first value will be passed to first argument, that means a में वैल्यू क्या आ गई बेटा? 3, 7, that means second वैल्यू 7 में आएगी, second argument। c में यहाँ से third argument हमने पास नहीं किया, तो that means it will take default value। तो a is 3, b is 7 and c is 10। next function call statement में बेटा my function 25, अब ये positional argument है, that means first value will be passed to first argument। तो a में वैल्यू क्या आ गई बेटा? 25, c इक्वल्स टू 24, दिस इज योर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, तो c में वैल्यू क्या आ गई? 24। अब डिफॉल्ट कंसीडर नहीं होगी। b में आपकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 5। सो a इज 25, b इज 5 एंड c इज 24। नाउ नेक्स्ट फंक्शन कॉल स्टेटमेंट, माई फंक्शन c इक्वल्स टू 50, अगेन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, c की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 50, a इक्वल्स टू 100, a की वैल्यू 100, और b की वैल्यू आपकी क्या यूज होगी? डिफॉल्ट। सो a is 100, b is 5 and c is 50। This is the final answer of this question. Now next question, x equals to 50, this x is your global variable, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। ग्लोबल वेरिएबल है, फंक्शन डिफाइन किया हमने, माई फंक्शन, हमने फंक्शन को कॉल किया, global x, that means now this function is accessing the value of the global variable। तो अब ये फंक्शन अगर कोई वैल्यू को चेंज करेगा, वो किस में चेंज होगा बेटा? ग्लोबल वेरिएबल में। तो x is yes it is प्रिंट हो जाएगा। x, वैल्यू ऑफ x कितनी है बेटा? 150, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया? 150। अब इस फंक्शन ने x की वैल्यू को क्या चेंज कर दिया बेटा? x इक्वल्स टू 2। नाउ x is
क्या हो जाएगा 2। अब सिंस दिस फंक्शन हैज एक्सेस द ग्लोबल वेरिएबल, तो वैल्यू जो चेंज होगी वो ग्लोबल वेरिएबल की भी होगी। अब आफ्टर दिस जब हम इस प्रिंट फंक्शन को कॉल प्रिंट कराएंगे, वैल्यू ऑफ x इज x। अब x में क्या वैल्यू है बेटा 2, सो नाउ इट विल प्रिंट 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, जो आपके आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। नाउ आई हैव ओपन दिस, सेम क्वेश्चन है बेटा, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, a इक्वल्स टू 100। तो हमने यहाँ पर वैल्यू लिखी a इक्वल्स टू 100। आई होप दिस इज विजिबल टू यू। एंड b इक्वल्स टू 30, तो b में वैल्यू क्या आ गई बेटा 30। उसके बाद मैंने क्या लिखा, a इक्वल्स टू अपडेटर फंक्शन कॉल किया और वैल्यूज क्या पास की बेटा a कोमा b। दैट मीन्स a इक्वल्स टू अपडेटर फंक्शन कॉल किया a कोमा b 100 और कोमा वैल्यू क्या है बेटा b की 30। तो कौन कौन सी वैल्यूज पास कर दी 100 और 30। इसको इरेज कर देते हैं। अब 100 और 30, अब जब मैं फंक्शन कॉल करूंगी, अपडेटर फंक्शन कॉल होगा, a में वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 100 और b में वैल्यू क्या आ जाएगी 30। अब इसको सॉल्व करो, a इक्वल्स टू a फ्लोर डिवीजन b। फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, क्वोशिएंट देगा इन इंटीजर फॉर्म। तो a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बेटा 100, फ्लोर डिवीजन 30। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 33 × 90, तो क्वोशिएंट मेरे पास क्या आया बेटा 3, तो a की वैल्यू क्या हो गई बेटा 3। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो, b इक्वल्स टू a मॉड्यूलस b। अब a की वैल्यू क्या लेंगे बेटा 3, अपडेटेड वैल्यू, मॉड्यूलस b। b की वैल्यू क्या है बेटा 30। अब इनको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या मेरे पास रिमाइंडर आएगा बेटा 3। स्टूडेंट्स को इनमें भी कंफ्यूजन रहती है। सपोज आई एम डिवाइडिंग इट हियर 30 और किससे डिवाइड करना है बेटा 3 से। अब ये नहीं जाता तो क्वोशिएंट 0, यहाँ पर 0, तो रिमाइंडर कितना आ गया बेटा 3। और अगर इसी का रिवर्स होता 3 और यहाँ पर 30, तो आपको पता है 3 10 30, तब रिमाइंडर कितना होता 0। ठीक है, लेट मी जस्ट इरेज दिस नाउ। और अगर वैसे आपको वैसे ध्यान रखना हो, डायरेक्टली करना हो, तो जो आपका फर्स्ट ऑपरेंड है अगर वो स्मॉल है एज कंपेयर टू द सेकेंड वन, तो आपका आंसर ऑलवेज कौन सा होगा बेटा फर्स्ट वाला। अब यहाँ पर क्या कराना, आंसर आई एम राइटिंग इट हियर, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। प्रिंट $a, a की वैल्यू क्या है बेटा 3, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 3, फिर डॉलर और फिर b की वैल्यू भी क्या है बेटा 3, तो यहां से तो क्या प्रिंट हो गया $3। अब क्या है बेटा रिटर्न a प्लस b, दैट मीन्स a प्लस b, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 3। क्या किस में रिटर्न होएगी ये a में, और क्या रिटर्न होएगा 6। दैट मीन्स अब मेरे पास a की वैल्यू यहाँ पर 100 ना होकर के क्या है बेटा 6। ठीक है, 100 वैल्यू मेरे पास a की नहीं है। और a में ही क्यों आएगी, जब हमने फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया बेटा, यहाँ पर हमने फंक्शन कॉल किया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था a इक्वल्स टू, दैट मीन्स जो ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा उसकी वैल्यू किस में हम अपडेट कर देंगे a में। तो अब a में वैल्यू 100 ना होकर के क्या है बेटा 6। अब इतना सॉल्व हो गया। अब नाउ लेट मी जस्ट इरेज दिस। अब क्या लिखा हुआ है बेटा b इक्वल्स टू अपडेटर, और सॉरी यहाँ पर एक प्रिंट फंक्शन और है $a। अब a की वैल्यू क्या है बेटा 6, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 6 हैश सिंबल एज इट इज प्रिंट करा देंगे। एंड देन b की वैल्यू क्या है बेटा 30, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा 6 हैश 30। अब उसके बाद दिस स्टेटमेंट b इक्वल्स टू अपडेटर b। ठीक है, b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, b इक्वल्स टू अपडेटर b, वैल्यू ऑफ b इज 30। तो अब जब हम अपडेटर फंक्शन कॉल करेंगे, फर्स्ट वैल्यू विल बी पास टू फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, दैट मीन्स a में वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 30, और b में अब सेकेंड वैल्यू नहीं पास की, दैट मीन्स डिफॉल्ट वैल्यू। तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है बेटा 5, और जो वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न करेगा वो किस में चेंज होएगी बेटा b में। अब a इक्वल्स टू a फ्लोर डिवीजन b, दैट मीन्स a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 30, फ्लोर डिवीजन 5, तो 5 6 × 30, तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 6। और b इक्वल्स टू a
मॉड्यूलस b। अब इसको सॉल्व करो बेटा, b इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या आई है बेटा 6 मॉड्यूलस b की वैल्यू मेरे पास क्या है 5। अब इसको या तो डायरेक्ट डिवाइड कर लो, 5 1 जा 5, रिमाइंडर कितना आया बेटा 1। ठीक है, तो b की वैल्यू यहाँ से आ गई 1। अब रिटर्न ए, पहले इसकी वैल्यू प्रिंट करा देते हैं, $b, a की वैल्यू क्या है बेटा 6, तो यहाँ से क्या प्रिंट हो गया $6, b की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1, तो ये प्रिंट हो गया $6 1। उसके बाद है रिटर्न a प्लस b, इन दोनों को प्लस करो, 6 प्लस 1 7, और ये रिटर्न होकर किस में आएगा बेटा b में, तो दैट मीन्स b की वैल्यू अब 30 ना होकर के क्या हो गई 7। उसके बाद मुझे प्रिंट कराना है a हैश b, a की वैल्यू बेटा 6 हैश b की वैल्यू क्या आई बेटा 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 हैश 7। अब उसके बाद है a इक्वल्स टू अपडेटर, लेट मी जस्ट इरेज दिस नाउ, a इक्वल्स टू अपडेटर a, दैट मीन्स अब मुझे किसकी वैल्यू पास करनी है बेटा a की, a इक्वल्स टू अपडेटर a की वैल्यू क्या है बेटा 6, तो जब हम फंक्शन कॉल करेंगे a की वैल्यू क्या आएगी 6, b की वैल्यू नहीं गिवन, डिफॉल्ट वैल्यू लोगे, दैट मीन्स 5। अब इसको सॉल्व करो, a इक्वल्स टू a फ्लोर डिवीजन b, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, a की वैल्यू बेटा 6, फ्लोर डिवीजन b की वैल्यू, फ्लोर डिवीजन b की वैल्यू बेटा 5, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगी 5 1 जा 5, क्वेश्चन आएगा 1, और b इक्वल्स टू a मॉड्यूलस b, a की वैल्यू बेटा 1 और मॉड्यूलस b की वैल्यू बेटा 5, तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा बेटा 1। ठीक है, अब इसको जब हम करेंगे प्रिंट $b, a की वैल्यू 1, यहाँ पर 1 प्रिंट हो गया, $b की वैल्यू भी क्या है बेटा 1, तो क्या प्रिंट हो गया $1, रिटर्न a प्लस b करो, 1 प्लस 1 2, तो प्रिंट a की वैल्यू बेटा, और एक चीज ध्यान रखना, जो a प्लस b आया 2, वो किसकी वैल्यू हो जाएगी अब a की, तो जब हम a की वैल्यू प्रिंट कराएंगे वो क्या हो जाएगा 2 एंड देन डॉलर सिंबल, और फिर b की वैल्यू क्या है बेटा 7। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर जो हमने ये भी फाइंड आउट किया है। लेट मी जस्ट चेक दिस आंसर कि हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं करी। $3 6 हैश 30 $6 1 6 हैश 7 $1 1 $2 7। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। नाउ सी दिस क्वेश्चन बेटा, डेफ एग्जाम्पल ए। अब एग्जाम्पल फंक्शन क्या बेटा, स्ट्रिंग क्या हेलो हमने पास किया। अब आउटपुट पूछा है बेटा, क्या इसमें मुझे कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत है? क्योंकि अगर वैसे कैलकुलेट करना वैसे आपको बता देते हैं। ए में आपकी स्ट्रिंग आएगी हेलो प्लस स्ट्रिंग है 2, दैट मीन्स हेलो 2 स्ट्रिंग्स वी कैन कंकैटिनेट। फिर हेलो 2 को आपने 2 टाइम्स डिस्प्ले करा देना है और वो रिटर्न कराना है। इससे आपका आउटपुट नहीं आएगा, रीजन बीइंग दैट देयर इज नो प्रिंट फंक्शन इन दिस कोड फ्रेगमेंट। आपको जो ये कोड गिवन है यहाँ पर प्रिंट फंक्शन नहीं है। इफ प्रिंट फंक्शन इज नॉट देयर तो इट विल नॉट प्रिंट एनी वैल्यू। सो आपको आंसर में लिखना है नो आउटपुट। रीजन यू कैन राइट इफ you want to mention. So now let's move on to the next part of this output finding question. Make new, आपको एक फंक्शन गिवन है mystr, आर्ग्यूमेंट है। न्यू str आपको एक एम्प्टी स्ट्रिंग गिवन है बेटा। काउंट इक्वल्स टू 0, एक वेरिएबल ले रखा है इनिशियलाइज्ड विद 0 फॉर i इन mystr। mystr में आपकी ये स्ट्रिंग है बेटा student। लेट मी जस्ट शो यू इट हियर द सेम प्रोग्राम। ठीक है, अब उसके बाद क्या है बेटा, मेक न्यू, यहाँ से फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है। ये student ये वैल्यू आपकी पास होगी बेटा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन पार्ट स्टार्ट हो गया। ये न्यू str एक स्ट्रिंग है बेटा फॉर i इन mystr। अभी i में आपकी जो स्ट्रिंग है ना 1 by 1 इसका एक एक कैरेक्टर आएगा बेटा, पहले स्मॉल एस फिर कैपिटल टी फिर कैपिटल यू, इस तरीके से। फिर काउंट मॉड्यूलस 2, काउंट में इंटीजर वैल्यूज हैं। ठीक है, चेक करोगे इवन और की कंडीशन। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो देन दिस पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स देन एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होएगा। तो जब वो एल्स पार्ट में आएगा तो दिस कंडीशन विल बी चेक्ड। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन दिस पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स तो देन दिस पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है,
और इसमें हमने क्या करना है, न्यू str मेरे एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, हमने जस्ट उसमें कैरेक्टर्स को अपेंड करना है। आई डॉट अपर वो अपर केस में हो जाएगा, आई अगर मैं इसमें आऊंगी तो डायरेक्ट लिख देंगे उसको। और str ऑफ काउंट यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, काउंट इंटीजर वैल्यू है, str फंक्शन सपोज काउंट में वैल्यू है 2, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, फिर हम दो स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, कंकेटिनेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट मी जस्ट राइट द स्ट्रिंग हियर। जो आपकी स्ट्रिंग है बेटा, स्मॉल सी, कैपिटल टी, फिर कैपिटल यू, स्मॉल डी, ई, कैपिटल एन और कैपिटल टी, ये आपकी स्ट्रिंग गिवन है। लेट मी जस्ट चेंज इट्स कलर। ठीक है, ये आपकी स्ट्रिंग गिवन है बेटा। उसके बाद देखो स्मॉल एस, सबसे पहला काम बेटा इंडेक्सिंग। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ जो भी आपके आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इंडेक्सिंग। ठीक है, दिस 0 1 देन 2, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, दिस इज एट इंडेक्स 1 एंड दिस u इज एट इंडेक्स 2, 3 4 5 एंड 6। अब देखो सबसे पहले जो काउंट का आपका वेरिएबल है ना, हर एक बार इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट मीन्स ये मेरा जो कैरेक्टर जिस इंडेक्स पर है वो वाला काम कर रहा है। अब फॉर आई इन माई str, आई में वैल्यू क्या आएगी बेटा, स्मॉल एस, काउंट में वैल्यू 0, 0 मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, दिस कंडीशन इज फॉल्स, क्योंकि 0 मॉड्यूलस 2 तो कितना होता है बेटा, 0, कंडीशन फॉल्स। अब चेक करेंगे आई डॉट इज लोअर। अब कंडीशन अगर ये फॉल्स है तो मेरा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब एल्स पार्ट में क्या है बेटा, इफ आई डॉट इज लोअर, एस हमारा लोअर केस में है, तो दैट मीन्स कंडीशन इज ट्रू। अब जो न्यू str स्ट्रिंग है उसमें हमने क्या करना, एम्प्टी स्ट्रिंग थी, प्लस क्या ऐड और करना है, आई डॉट अपर, दैट मीन्स इस स्मॉल एस को मुझे कैपिटल एस करना है। फर्स्ट पार्ट हो गया। काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो, तो कर दी। अब काउंट की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 1। अब काउंट की वैल्यू जब मेरे पास 1 हुई बेटा, तो उस टाइम पर 1 मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू। तो अब मुझे क्या करना है, उस स्ट्रिंग में str ऑफ काउंट, काउंट की वैल्यू क्या है बेटा, 1, तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, उसके बाद काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है, अगेन काउंट की वैल्यू 2। अब कैपिटल यू, 2 मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स। अब एल्स पार्ट चेक करेंगे, इफ आई डॉट इज लोअर, क्या ये लोअर केस में यू, नो, कंडीशन फॉल्स। फॉल्स है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। न्यू str इक्वल्स टू न्यू str में फिलहाल हमारे पास ये दो कैरेक्टर्स हैं, प्लस आई में कौन सी वैल्यू है, कैपिटल यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, कैपिटल यू। उसके बाद नेक्स्ट स्मॉल डी के लिए करेंगे, 3 मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू। अब ट्रू है तो यहाँ पर str ऑफ काउंट, काउंट की वैल्यू क्या है बेटा, वही वैल्यूज चल रही है जो इंडेक्स की हैं, 3, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, 2 स्ट्रिंग्स को हम कंबाइन कर सकते हैं, तो क्या आ गया बेटा, 3। नेक्स्ट है स्मॉल ई, 4, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पर 4 मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स। अब यहाँ पर आएगा इस पार्ट में, इफ आई डॉट इज लोअर, क्या ये इज लोअर है बेटा, ठीक है, आई हम कौन सा कर रहे हैं, 4th इंडेक्स की 5 इंडेक्स, 0 1 2 3, 4th इंडेक्स बेटा स्मॉल ई। ठीक है, तो इफ आई डॉट इज लोअर, कंडीशन ट्रू, लोअर केस में है। अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है बेटा, अपर केस में, तो हमने इसको स्मॉल ई को किस में कन्वर्ट कर दिया, अपर केस में। उसके बाद बेटा काउंट की वैल्यू 5 मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू। अब यहाँ पर मैंने क्या ऐड कर दिया, 5। अब लास्ट है हमारे पास टी, दैट मीन्स 6 मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स। आई डॉट इज लोअर, अब क्या टी ये लोअर केस है, नहीं, कंडीशन फॉल्स। अब एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे, क्या ऐड करना है, आई की वैल्यू क्या है बेटा, कैपिटल टी, ये आ गया। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब न्यू str में हमने एक चीज और ऐड करनी है, क्या ऐड करनी है, माई str कॉलन 1, ये हमारे पास माई str बेटा स्ट्रिंग है, ये वाली। अब कॉलन 1 स्लाइसिंग ऑपरेशन है, दैट मीन्स किस इंडेक्स की वैल्यू आएगी, 0 इंडेक्स पर क्या है बेटा, स्मॉल एस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉल एस। अब फाइनल आंसर में ये चीज आपने एज इट इज लिखनी है, द न्यू स्ट्रिंग इज, देन यू हैव टू राइट दिस आंसर।
capital S 1 U 3 E 5 T and this is small s. Let me just check this कि हमने कोई mistake ना करी हो. The new string is capital S 1 U 3 E फिर 5 and then T और उसके बाद क्या बेटा small s. So this is the final answer of this question. Now next question, create a function show employee. इस नेम से फंक्शन क्रिएट करना है. Let me just comment our previous question. Def function name बेटा show employee. अब क्या करना है फंक्शन नेम in such a way that it should accept employee name and its salary. दो चीज एक्सेप्ट करनी है उसने, एक नेम और एक सैलरी. दो आर्ग्यूमेंट्स हमने लिख दिए. एंड इट्स सैलरी डिस्प्ले बोथ, दैट मीन्स दोनों को डिस्प्ले भी कराना है. डिस्प्ले भी करा देते हैं. इट्स वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू अप्लाई द लॉजिक्स. ये आपका नेम हो गया, इसको हमने डिस्प्ले करा दिया. और एक ये आपकी सैलरी हो गई, इसको भी डिस्प्ले करा दिया. ठीक है, अभी तक कोई डाउट नहीं. उसके बाद देखो क्या करना है. एंड इफ सैलरी इज मिसिंग इन फंक्शन कॉल इट शुड शो इट एज 10,000. पहले बिना सैलरी को मिस करे करते. दैट मीन्स ये चीज हमने लिख दी. यहाँ पर हमने नेम और सैलरी, सपोज नेम की वैल्यू मैंने असाइन कराई यहाँ पर निशा और सैलरी की वैल्यू मैंने ले ली लेट्स सपोज 50,000. ठीक है, अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो नेम आ गया निशा और सैलरी आ गई 50,000. अब क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ सैलरी इज मिसिंग इन फंक्शन कॉल. फंक्शन कॉल से हम सैलरी को हटा देते हैं. अगर वो मिस है तो हमने क्या करना है, इट शुड शो इट एज 10,000. तो हमें सैलरी कितनी लेनी है, 10,000. दैट मीन्स आपको यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू लेनी है. ठीक है, अगर मैं शो एम्प्लॉय फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर रही हूँ बेटा और सैलरी हम लोग मिस नहीं कर रहे हैं तो वो क्या लेगा 50,000. और अगर मिस कर दी तो क्या लेगा बेटा, वो डिफॉल्ट वैल्यू, दैट मीन्स 10,000. ठीक है, हो गया क्वेश्चन. इट वाज वेरी सिंपल. नाउ नेक्स्ट बेटा, राइट द फंक्शन डेफिनेशन टू फाइंड एंड रिटर्न द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर. कि हमें फंक्शन का किसी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना और उसको रिटर्न कराना. फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए आपको किस बात का ध्यान रखना है, लेट मी जस्ट राइट इट हियर. एक तो देखो बेटा फैक्टोरियल जो है हमारा नेगेटिव नंबर का, अगर मैं नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना चाहूं तो वो एग्जिस्ट नहीं करता. आई एम राइटिंग इट हियर, डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता है. और अगर हम पॉजिटिव नंबर की बात करें बेटा, 0 का फैक्टोरियल कितना होगा, फैक्टोरियल ऑफ 0 1 और फैक्टोरियल 1 का भी कितना होता है बेटा 1. ये चीज सबको पता है. और इसके अलावा मुझे अगर किसी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, लेट्स सपोज 4 का फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. इसी को अगर मैं चाहूं तो इस तरीके से लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4. ठीक है, एक ही बात है. दैट मीन्स अगर मैं रेंज फंक्शन लगा रही हूँ तो 1 से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट नहीं करना, 1 से स्टार्ट करना है. ठीक है, और सेकेंड थिंग, कहाँ तक चलना है, जो मेरा नंबर है. अगर मैं n की वैल्यू लेट्स सपोज नंबर पास करा रही हूँ जिसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, तो अगर मैं रेंज फंक्शन में n लिख दूंगी तो रेंज फंक्शन मेरा एक कम तक चलेगा. दैट मीन्स मुझे रेंज फंक्शन n+1 तक चलाना है. ठीक है, क्लियर हुआ. अब आपका काम बिल्कुल सिंपल है. इसको लेट मी जस्ट कमेंट दिस. ठीक है, फंक्शन डिफाइन करते हैं टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर. लेट्स चेक द नेम फैक्टोरियल. यहाँ पर हमने कोई एक वेरिएबल लिया n. यहाँ पर हम यूजर से कोई भी एक नंबर एंटर कराएंगे जिसका हमें फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है. इंट इनपुट एंटर नंबर टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल. ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव टू कॉल द फैक्टोरियल फंक्शन. नम वैल्यू पास करेंगे, वो किस में आ गई बेटा n में. अब चेक करेंगे इफ n इज लेस देन 0, दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू है. अगर नेगेटिव वैल्यू है तो वी विल प्रिंट फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देंगे
क्योंकि क्वेश्चन में क्या है कि मेरा फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट। एल्स पार्ट, दैट मीन्स अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया, सपोज फैक्ट नेम से इनिशियलाइज कराया 1 से। अच्छा, लेट मी टेल यू वन थिंग कि हम जब भी कुछ सम करते हैं तो वैल्यू इनिशियलाइज कराते हैं 0 से, मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 से कराते हैं। रीजन बीइंग दैट एडिशन में हम कुछ भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो नंबर इटसेल्फ होगा। फर्स्ट केस में जैसे हम लोग 0 + 5 तो 5 आ जाता है। इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन किसी भी नंबर में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर इटसेल्फ होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, असाइन कराया 1 से। अब फॉर आई इन रेंज, अब ये लूप कहाँ तक चलेगा बेटा, n+1, क्योंकि अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है और n में क्या है बेटा 5, तो 5 + 1 6 लिखूंगी तब वो 5 तक चलेगा। ठीक है, अब उसके बाद मुझे मल्टीप्लाई करना है फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई। ठीक है, और यहां पर हम प्रिंट करा देते हैं आउटसाइड दिस फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल इक्वल्स टू FACT। ठीक है, अब नाउ लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट दिस। पहले नेगेटिव नंबर का चेक करते हैं, -9, फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट, वी आर गोइंग करेक्ट। अब लेट सपोज 4 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, इट इज शोइंग 0, लेट मी जस्ट चेक कहाँ मिस्टेक की। यहाँ पर हम 1 लिखना भूल गए। ठीक है, स्टार्ट किससे करेंगे, 1 से, अगर 0 से करेंगे तो वो ठीक है 0 ही आएगा आंसर। यहाँ पर सपोज आई एम राइटिंग 4, तो 4 × 3 12, 12 × 2 24, 24 × 1 24, तो दैट मीन्स ये आपका करेक्ट हो गया। अब एक बार हम 0 एंटर करके देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। ठीक है, 0 का फैक्टोरियल 1। अब 0 का फैक्टोरियल 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एल्स पार्ट में जाएगा बेटा। एल्स पार्ट मीन्स कंडीशन, दिस वन कंडीशन 0 > 0 कंडीशन फॉल्स, वो यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर ये फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, सीधा फैक्ट की वैल्यू प्रिंट करा दिया, दैट इज 1। अब इसको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं कि वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पर आप कोई भी एक नंबर ले लो, सपोज यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर ले रही हूँ क्योंकि फैक्टोरियल मेरा नेगेटिव नहीं रिटर्न करेगा, या आप 0 भी ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर हमने रिटर्न करा दी फैक्ट की वैल्यू। अब यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया, उसमें वैल्यू असाइन करा दी। अब इफ r डबल इक्वल्स टू -1, क्योंकि हमने -1 के लिए यहाँ पर क्या लिखा है, फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स नेगेटिव नंबर के लिए, तो यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे, प्रिंट फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट। एल्स पार्ट में आपका फैक्टोरियल प्रिंट रिटर्न होकर के आएगा, कैलकुलेट होकर के, तो हमने यहाँ पर इसको प्रिंट करा दिया। किसकी वैल्यू प्रिंट कराएंगे बेटा, r की। नाउ लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट दिस एंड द शॉर्टकट की टू एग्जीक्यूट दिस F5। सो एंटर अ नंबर टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल, लेट्स सपोज -5, फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट। अब -5 पर क्या हुआ बेटा, -5 < 0 कंडीशन ट्रू। अब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो इट विल रिटर्न -1, तो जब ये वैल्यू रिटर्न करेगा -1 किस में आ जाएगी बेटा, वो r में, तो यहाँ से कंपेयर होगा। इफ r डबल इक्वल्स टू -1 तो इट विल प्रिंट फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस फॉर 0 के लिए फैक्टोरियल 1। ठीक है, क्योंकि ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा उस टाइम। ठीक है, तो रिटर्न फैक्ट की वैल्यू बेटा 1, तो इट विल रिटर्न 1। और लेट्स सपोज आई एम एंटरिंग द वैल्यू 5, तो फैक्टोरियल इज 120। ठीक है, इसमें आप कितनी भी बड़ी जो इसकी रेंज है वहां तक नंबर हम एंटर करा सकते हैं। लेट्स सपोज 896, तो ये 896 का फैक्टोरियल आ गया बेटा। ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ी डिजिट डाल दी आई थिंक। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। और बेटा एग्जाम में अगर सपोज आता है राइट अ फंक्शन डेफिनेशन टू फाइंड एंड रिटर्न द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, तो यू हैव टू राइट ओनली दिस मच। ठीक है, बस हाँ अगर कंप्लीट प्रोग्राम आता है आपसे, वैसे इट्स वेरी रेयर कि आपका कंप्लीट प्रोग्राम एग्जाम में पूछा जाए। दे जनरली टोल्ड यू टू राइट द फंक्शन डेफिनेशन पार्ट ओनली। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन फाइंड आउट। अब दैट मीन्स फंक्शन कौन सा गिवन है बेटा, फाइंड आउट।
Let me just write it here now. ये फाइंड आउट फंक्शन का नेम है बेटा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे डेफ कीवर्ड, और यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट्स आर हियर, नेम एंड हिज नेम। चलो एक नेम ले लेते हैं और एक हिज नेम ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है बेटा टू सर्च फॉर हिज नेम, दैट मीन्स हिज नेम में मेरे पास एक स्ट्रिंग आएगी, उसको मुझे सर्च करना फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ नेम्स। नेम्स मेरी एक लिस्ट है, हिज नेम से मुझे मीन्स कोई एक स्ट्रिंग सर्च करनी है, एंड डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ इट्स प्रेजेंस, दैट मीन्स अब मुझे इंडेक्स की बात हो रही है, तो दैट मीन्स मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, रेंज फंक्शन। अब यहाँ पर ले लेते हैं, पहले एक लिस्ट एंटर करा लेते हैं। लेट्स सपोज list इक्वल्स टू eval फंक्शन input enter list of strings। अब उसके बाद we have to call this find out function, और मुझे एक वेरिएबल भी एंटर कराना है, को स्ट्रिंग जो मुझे सर्च करनी है, ठीक है। उसके लिए स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा तो हम सिंपल इनपुट फंक्शन ले लेते हैं, एंटर स्ट्रिंग टू बी सर्च। अब फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ पर क्या पास करेंगे बेटा, लिस्ट, और हमारा सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या है, सर्च। अब यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं क्या लिखूंगी, फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ नेम्स, जो मेरी लिस्ट है बेटा वहां तक ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, वहां तक ये लूप चलेगा। अब यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं है कि रिटर्न कराना है, आपने क्या करना है, उसकी डिस्प्ले करानी है क्या, पोजीशन। एग्जाम्पल दे रखा है कि नेम्स मेरे पास सपोज ये लिस्ट है, और हिज नेम में मैं तरुण को सर्च करा रही हूँ, द फंक्शन शुड डिस्प्ले तरुण एट 2, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इफ। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, आई में वैल्यू क्या आएगी, 0, और जो ये फर्स्ट है मेरे पास नेम अरुण, ये किस पर है, नेम अगर लिस्ट है तो दिस इज एट इंडेक्स 0, तो ये है मेरा नेम ऑफ 0, दैट मीन्स नेम ऑफ आई लिख दे यहाँ पर, डबल इक्वल्स टू हिज नेम। हिज नेम में मेरे पास क्या है, जो मुझे सर्च करना। अब यहां पर मैंने लिख दिया हिज नेम प्रेजेंट एट इंडेक्स, और इंडेक्स किस में है बेटा, आई, वही वाली वैल्यूज है आई में। इस हिज नेम को आपने विद इन कोट्स नहीं लिखना है, अगर विद इन कोट्स लिखेंगे दैट मीन्स ये आपकी एक स्ट्रिंग हो गई, बट मुझे इस वेरिएबल में जो वैल्यू है उससे कंपेयर कराना है, तो लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट दिस। यही वाले स्ट्रिंग्स ले लेते हैं, इसको क्रॉस करते हैं, दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आ गई बेटा। अब सपोज मुझे सर्च करना है तरुण, सर्च इज नॉट डिफाइंड। अब कहाँ मिस्टेक करी, लेट मी जस्ट चेक, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। हम मिस्टेक करके इंसान सीखते हैं, हम भी सीख गए, ठीक है। चलो लेट्स एग्जीक्यूट दिस अगेन। अब हमने स्ट्रिंग सर्च की, लेट्स सपोज तरुण, तो इसमें दिखा दिया तरुण प्रेजेंट एट इंडेक्स 2, 0, 1 और 2, ठीक है। यहाँ पर आपकी चॉइस है, अगर जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करोगे तो तरुण एट 2, सिंपल इतना लिख रखा है, तो हम सिर्फ यहाँ पर क्या लिख देते हैं, तरुण एट, और ये लिख दो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। अब इसमें हम कोई और स्ट्रिंग एंटर करा कर देखते हैं। लेट्स सपोज हमने एंटर कराया कनिका। अब कनिका किस पर है, 0, 1, 2 और 3, ठीक है। अब एक चीज और देखो, अगर मैं ऐसा कोई नेम एंटर कराऊं जो मेरे लिस्ट में ना हो, लेट्स सपोज निशा, अब ये लिस्ट में नहीं है, तो यहाँ पर ये आपको एरर शो कर, यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एंटर करानी है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एंटर करा देते हैं। यहाँ पर जो मुझे सर्च करनी है वहां पर मैंने एंटर कराया निशा, तो अब ये आपको क्या कर रहा है, कुछ भी मैसेज नहीं प्रिंट करा रहा है, इन केस जो एलिमेंट मुझे सर्च करना है वो मेरी लिस्ट में नहीं है। तो अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं। फाउंड एक वेरिएबल लिया मैंने 0, अब जैसे ही बेटा यहाँ पर मिल गया, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ब्रेक, और फाउंड की वैल्यू क्या कर दी मैंने, 1, ठीक है। फाउंड की वैल्यू 1 कर दी, वो सिर्फ तभी होगा, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करा सकते हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया एल्स प्रिंट नॉट फाउंड, ठीक है। ये हमने 4 एल्स पार्ट एग्जीक्यूट किया बेटा, स्ट्रिंग एंटर करी, लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट दिस,
अब यहाँ पर हमने स्ट्रिंग एंटर करी, अब स्ट्रिंग टू बी सर्च, लेट सपोज निशा, अब ये आ गया यहाँ पर नॉट फाउंड, ठीक है। अब एक एंटर कराते हैं जो उसमें ऑलरेडी है, लेट सपोज राज, अब ये आ गया राज एट 1। अब ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है बेटा, अब फाउंड की वैल्यू हमने असाइन कराई 0, अब फाउंड की वैल्यू 1 अगर हो गई, कब होगी, जब उसे वो मिल जाएगा, मीन्स किसी भी इंडेक्स पर वो वैल्यू मिल जाएगी, सर्च कर लिया, सर्च इज सक्सेसफुल। तो ब्रेक, अगर मैं ब्रेक केस के थ्रू फॉर लूप से बाहर आऊंगी तो मेरा फॉर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ सेपरेट कंडीशन लगा सकते हो, इफ फाउंड इक्वल्स टू 0 तो दैट मीन्स एलिमेंट नॉट फाउंड, समथिंग लाइक दिस, और यू कैन इवन यूज फॉर एल्स पार्ट आल्सो, ठीक है। आई होप आपको ये जितने क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड द लिंक ऑफ दिस क्वेश्चंस आल्सो in the description also, ठीक है। If you want more such videos like this, do mention in the comment section, and if you like this video and your concepts are clear, do press the like button and share your views in the comment section. And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.